Welcome to the last lecture of this lecture series, guys. This today is lecture 20, and we are covering Mppsc mains paper 2, part B, unit 5. And today is the last topic of unit 5, which is WHO, World Health Organization. Okay, so ये आपका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. इसमें हमको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, इनके इनिशिएटिव्स पढ़ने हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस पढ़ने हैं. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है आफ्टर कोविड इनफैक्ट. तो देखते हैं हम फटाफट. ओके, सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द लेक्चर. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, the United Nations Specialized Agency for the Health, was founded in 1948. Its headquarters are situated in Geneva, Switzerland. ठीक है, तो ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में situated है. It was founded in 1948 and it consists of 194 member states, 150 country offices and 6 regional offices are there. Okay, तो ये चीज़ है. Then it is an intergovernmental organization and works in collaboration with its member states, usually through the ministries of health. आपको पता है कि इनका काम क्या है. They mostly work in the context of health. Now, the WHO provides leadership on global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical support to countries, and monitoring and assessing health trends. ठीक है? It began functioning on April 7, 1948, a date now being celebrated every year as World Health Day. तो आपको पता है that 7 April is celebrated as World Health Day. और ये जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उस टाइम पे फंक्शनिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी, इसलिए जो है हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूएचओ? क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? What should be motives भी आप बोल सकते हो. First is to act as the directing and coordinating authority on international health work. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले तो आपके पूरे इंटरनेशनली अगर हेल्थ पे काम होगा तो दैट इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO. देन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन effective collaboration with the United Nations, specialized agencies, governmental health administrations, प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट. ठीक है, अगर ऐसी कोई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसी गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व है, तो उनके साथ आपको इफेक्टिव कोलैबोरेशन में काम करना होगा. देन to provide assistance to the governments upon request in strengthening health services. ठीक है, तो you need also need to provide the assistance to governments in order to strengthen the health services. Okay, then to promote cooperation among scientific and professional groups which contribute to the advancement of health. आपको cooperation जो है वो promote करना है among scientific and professional groups which contribute to the advancement of health. Okay, so this is also necessary. Then what are the functions of WHO? ठीक है, क्या क्या आपके functions हैं WHO के? तो देखो, सबसे पहला फंक्शन है दैट प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ एंड एंगेजिंग इन पार्टनरशिप्स वेयर जॉइंट एक्शन इज नीडेड. ठीक है, जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी कि हाँ एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे एक लीडर की तरह उभरेगा WHO. ठीक है, वो आपकी एंगेज करेगा स्टेक होल्डर्स को, और जितने भी लोग नीडेड होंगे, टीम नीडेड होगी, एडमिनिस्ट्रेशन नीडेड होगा, उनको एंगेज करेंगे और वो ये इंश्योर करेंगे दैट वट एवर द डिजीजेज स्प्रेडिंग उस पर हम जो है वो एक रोक लगा सकें. ठीक है. देन नेक्स्ट इज shaping the research agenda and stimulating the generation, translation and dissemination of valuable knowledge. तो देखो, research पे आपको काम करना है, you need to work on research. Then it also in the case of dissemination of valuable knowledge. ठीक है, तो आप translation कर सकते हो, आपको valuable knowledge जो है वो आपको लोगों तक पहुंचानी है, that what is necessary, what is not necessary. ठीक है. Next, setting norms. देखो, ज़्यादातर functions तो आपको समझ में आ ही गए होंगे as the how the WHO has worked during the pandemic, whole time of pandemic. तो उससे आपको काफी हद तक जो है वो चीजें क्लियर आउट हो चुकी होंगी that what are the actual functions of WHO and how does it work. Okay, now setting norms and standards and promoting and monitoring their implementation. तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो उसको फॉलो करने चाहिए वो जो है वो प्रैक्टिस होती है. देन इज आर्टिकुलेटिंग एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस. ठीक है, आपको ऐसे जो है वो पॉलिसी ऑप्शंस देने हैं जो सब लोग फॉलो कर सके, एंड इट इज लाइक यू नो एवरी सिंगल पर्सन कैन फॉलो. ओके, तो आपको इस टाइप के जो है उनको ऑप्शंस देने हैं. देन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, कैटलाइजिंग चेंज एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी. सो आपको ये देखना है कि आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करो, आप चेंज
लॉन्च लेकर आओ, एक सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनाओ आप, ठीक है। एवरी पर्सन इज वर्किंग इन देयर ओन वे एंड वेरी इफेक्टिवली। देन मॉनिटरिंग दी हेल्थ सिचुएशन एंड एड्रेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई सिचुएशन आपकी बिगड़ी हुई है कहीं पे और कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इंश्योर करनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ WHO टू दिस वर्ल्ड। क्या क्या तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में आए हैं बिकॉज ऑफ WHO, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स दैट इम्यूनाइजेशन व्हिच प्रिवेंट्स द 6 मेजर कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड, डिप्थीरिया, मीजल्स, poliomavitis, tetanus, tuberculosis and whooping cough should be available to all children who need it. WHO is leading a worldwide campaign to provide effective immunization for all children in cooperation with the UNICEF। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके जितने भी ये डिजीजेज हैं, टीबी हो गया, मिसल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटनस हो गया, वूपिंग कफ हो गया, इनको जो है वो WHO ने बहुत ही इफेक्टिवली कवर किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये इंश्योर किया दैट एवरी सिंगल पर्सन शुड गेट वैक्सीनेटेड टुवर्ड्स दैट, ओके। और ये यूनिसेफ के साथ मिलकर इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। देन द कंट्री ऑफिसर्स आर WHO's primary contact points with government. They provide technical support on health matters, share relevant global standards and guidelines, and relay government requests and requirements to other levels of WHO. They also inform and follow up with the post government on reports of disease outbreaks outside the country. देखो टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो वो होगा WHO। कोई भी गवर्नमेंट के साथ अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो WHO इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हमने कोविड के टाइम में भी देखा था कि WHO टाइम टू टाइम वाज गिविंग अस सम काइंड ऑफ एडवाइजरी इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट के साथ वो जो है वो कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो WHO का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड 1948 to 58 the WHO focused major attention on specific infectious diseases afflicting millions of people in the developing countries. These included malaria, yaws, TB and venereal diseases, ठीक है। तो अगर आप देखो फर्स्ट डिकेड की बात करो दैट इज फ्रॉम 1948 to 58, तो ज़्यादातर जो है वो आप बोलोगे इनका जो अटेंशन था दैट इज ऑन दी इन्फेक्शियस डिजीज विच इंक्लूडेड मलेरिया, TB एंड venereal disease, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप देखो 1958 से 1968 तक, तो दैट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल लिबरेशन इन अफ्रीका ऑफ सम सेवरल फॉर्मर कॉलोनीज। तो आपको पता है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिजीजेज हुए हैं, ठीक है। और अफ्रीका में ऐसे ऐसे डिजीजेज हुए जिनको इराडिकेट कर पाना आसान नहीं था, ठीक है। बट वो ग्रेजुअली इराडिकेट हुए, ठीक है। तो विच बिकेम वोटिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट। और ये चीज़ जो है वो आपको पता है दैट अफ्रीका हैज़ रियली कम सो फार एंड अगर WHO उस वक्त नहीं होता तो शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। द थर्ड डेकेड 1968 to 1978 of WHO included the great victory of eradicating smallpox from the earth. In 1967, smallpox was still endemic in 31 countries, affecting between 10 to 15 million people, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि 1967 जो है वो स्मॉलपॉक्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट था, और वो नहीं होता अगर वो एंडेमिक नहीं, अगर WHO नहीं होता तो बहुत लोग मारे जाते बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। बट 1967 में क्या हुआ कि मतलब उस टाइम पे आपको पता है कि इन्होंने WHO ने मिलके बहुत ज़्यादा इरेडिकेट किया है स्मॉल पॉक्स को, ठीक है। सो इट वाज नॉट इजी, स्टार्टिंग में सब कुछ डिफिकल्ट लगता है बट जैसे जैसे आप काम करते जाते हो तो वो एवरीथिंग बिकम्स इजी फॉर यू, ठीक है। देन द फोर्थ डेकेड 1978 to 1988 was ushered in by a great world conference of WHO and UNICEF in Alma-Ata, a city of the Asiatic part of the Soviet Union. In reaction against excessive attention to high technology, the Alma-Ata conference emphasized the great importance of primary health care, preventive and curative as the best approach in national health policy to national health policy, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है कि एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी among WHO and UNICEF at Alma Ata, ठीक है। तो ये आपका जो है वो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात हुई, क्यूरेटिव हेल्थ केयर के बारे में बात हुई, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बात हुई कि आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, आपको इंश्योर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, WHO एंड इंडिया। इंडिया और WHO के बीच में क्या रिलेशंस है, कैसे उनका काम चल रहा है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द WHO ऑन जनवरी 12 1948। 12 जनवरी 1948 को हम जो है वो इसके पार्टिसिपेंट बने, और रीजनल ऑफिस हमारे यहाँ अगर आप देखो तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कैसे कैसे WHO ने मिलकर हमारे यहाँ पे काम करवाया है। स्मॉल पॉक्स अगर हम देखें
In 1967, the total number of smallpox cases recorded in India accounted for nearly 65% of all cases in the world. Of this, 26,000 of cases died, giving a grim picture of the relentless fight that lay ahead. In 1967, the WHO launched the Intensified Smallpox Eradication Program. तो इस जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया WHO की वजह से, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है हम ये इरेडिकेट कर पाए और हम इसको कर्व कर पाए, ठीक है। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ WHO, ठीक है। देन पोलियो, पोलियो के बारे में तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा। इंडिया began the battle against the disease in response to the WHO's 1988 Global Polio Eradication Initiative with financial and technical help from World Bank, ठीक है। हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया because we were taking technical help from World Bank, okay। And as a result of these efforts, India was removed from a list of endemic countries in 2015, so 2014, so you can say 2014 के बाद जो है वो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पोलियो का केस इंडिया में आया होगा, ठीक है। सो इट इज दीज आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ WHO given to India also, ठीक है। Then what is the role of WHO in World Health Concerns? आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो WHO पूरे वर्ल्ड के हेल्थ में ही इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इनके जो है वो रोल है? फर्स्ट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। द WHO is constantly monitoring the circulation of influenza viruses to detect potential pandemic strains. 153 institutions in 114 countries are involved in global surveillance and response, ठीक है। तो ये आपको पेंडेमिक को आपको रोकने की जो काम था, ठीक है, ये वायरसेस को रोकना, इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च करना और सारी कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना, इट वॉज नॉट ईजी, but WHO somehow managed it. ठीक है? Then Ebola and other high threat pathogens. In 2018, the Democratic Republic of the Congo saw two separate Ebola outbreaks, both of which spread to cities of more than 1 million people. One of the affected provinces is also in an active conflict zone, ठीक है। तो ये चीज़ भी है कि कॉन्गो में जो है वो इबोला वायरस जो था उसको भी जो है वो कंटेन किया, ठीक है। Then WHO's R&D blueprint identifies diseases and pathogens that have the potential to cause a public health emergency but lack effective treatments and vaccines, ठीक है। तो इनका R&D जो है वो पूरी तरीके से डिजीजेस को आइडेंटिफाई करता है, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करता है और एक अपना पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो ये लॉन्च करते हैं कि हाँ भाई इफेक्टिवली जो है वो किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंगू। It is a mosquito-borne disease that causes flu-like symptoms and can be lethal and kill up to 20% of those with severe dengue. Has been a growing threat for decades. A high number of cases occur in rainy seasons of countries such as Bangladesh and India. WHO's dengue control strategy aims to reduce death by 50% by 2020. तो ये जो इन्होंने इनकी जो स्ट्रैटेजी थी डेंगू कंट्रोल करने की, इससे we have contained 50% of cases by 2020. So I think we have keep a very great line by containing the dengue cases in Bangladesh and India. Then fourth is HIV. The WHO is working with countries to support the introduction of self-testing so that more people living with HIV know their status and can receive treatment. ठीक है। तो आपको पता है कि HIV के ऊपर सारा बहुत तेजी से काम हो रहा है बिकॉज HIV इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेडली डिजीज और हम लोग HIV को ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसे इतने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ओके। तो ये चीज़ जो है वो इंश्योर करनी है। द नेक्स्ट इज कोविड-19। देखो कोविड-19 में तो nobody can even deny the fact that WHO has worked greatly, ठीक है। The WHO characterized COVID-19 as a pandemic in 2021. That test for COVID-19, the first test led samples of all suspected patients are sent for the polymerase chain reaction PCR टेस्ट आपको कंडक्ट करवाना रहता था, ठीक है। ये चीज़ कोविड-19 में तो WHO ने बहुत सारी एडवाइजरी भी लॉन्च करी थी, ठीक है, कि लोग जो है वो अवेयर रहें। Then monkeypox. In July 2022, WHO has declared global health emergency and sounded the highest alarm of the monkeypox virus. monkeypox वायरस के बारे में भी आपने सुना होगा कि जुलाई 2022 में ये जो है वो डिक्लेयर किया था WHO ने कि आपको थोड़ा सा बच के रहना monkeypox वायरस से। Now what are the WHO organizational challenges? क्या क्या आखिर WHO के ऐसे challenges हैं organizational जो आपको लगता है कि हाँ ये एक challenge है या फिर ये WHO की limitation है, ठीक है। WHO has been dependent on donor funds. ये dependent है अपने donors के ऊपर, many from rich countries and foundations like the Bill and Melinda Gates Foundation, ठीक है, rather than through secure funding from countries, ठीक है। तो ये अलग अलग foundation पे depend करते हैं अपने funding को लेके, ठीक है। तो ये एक इनका challenge है। As a result, currently 80% of WHO's funding is tied to programs that donors choose.
डोनर्स जो चूज करेंगे वो ही प्रोग्राम के ऊपर काम होगा. वर्क प्रोग्राम्स दैट आर वाइटल टू डब्ल्यूएचओ मैंडेट remain underfunded as they clash with the interest of the donors, especially of rich and developed countries. ठीक है. अब देखो, अब ज्यादातर अगर डोनर कहाँ है, जैसे लगे बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, तो ये ज्यादातर कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे एरियाज में काम हो कि जो इनके फायदे के हों. ठीक है. तो ये चीज थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात हो जाती है. देन कॉन्सिक्वेंटली डब्ल्यूएचओ's role as a leader in global health has been supplanted by other intergovernmental bodies such as the World Bank and increasingly by big foundation. The organization's efficacy has come under the question, especially after its inadequate performance in containing West Africa's Ebola endemic of 2014. It was because of WHO's insufficient funding, structuring, staffing, and bureaucracy. ठीक है. तो देखो, एक तो फंडिंग स्ट्रक्चरिंग भी अच्छे से करी नहीं हुई है, स्टाफ भी इनका थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक है कि हाँ, एक बोल सकते हो आप कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस ऑफ डब्ल्यूएचओ, और इसको ओवरकम बहुत करना हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है. सो गाइस, we covered this topic of WHO today, and this was the last topic of Unit 5. And here we are done with covering Unit 3, 4, and 5. And okay, so I hope you got all the topics very thoroughly, और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. Okay, so yeah, guys. Thank you very much, and keep learning, study well. Jai Hind, Jai Bharat.